Good morning, students. Today we are going to start chapter Aldehyde Ketones and Carboxylic Acid. In this chapter, we will discuss about the organic compound containing carbon-oxygen double bond, that is carbonyl group, the most important functional group in the organic chemistry. In aldehydes, carbonyl group, that is carbon-oxygen double bond, is attached to either two hydrogen atom, that is carbonyl group attached to two hydrogen atom, or to one hydrogen atom and one carbon containing group such as alkyl group or aryl group. While in ketones, carbonyl group, that is carbon oxygen double bond, is attached to two carbon containing groups, that is alkyl or aryl, which may be same or different. If R is equal to R dash, then it is simple ketone. If R is not equal to R dash, then it is mixed ketone. And compound in which carbonyl group is bonded to oxygen are known as carboxylic acid and their derivatives. कौन कौन से derivatives हो सकते हैं उसमें? Esters. इसमें कार्बोनाइल जो ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, वो किसके साथ अटैच है? ऑक्सीजन के साथ. और कौन सा डेरिवेटिव हो सकता है इसमें? दैट इज एसिड एनहाइड्राइड. बट इफ द कार्बन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप इज अटैच्ड टू नाइट्रोजन, then it is amide, that is CONH2. If it is attached to halogen, that is known as acyl halide, that is RCOX. Now, aldehyde ketones and carboxylic acids play an important role in biochemical processes of life. They add fragrance and flavor to the nature. For example, vanillin, salicylaldehyde, cemenaldehydes. They are used in many food products and pharmaceuticals to add flavor and used for preparing materials like paints, perfumes, plastic, and fabrics. Nomenclature, that is naming of aldehyde and ketones. First one is common name. The common name of aldehydes are derived from the common name of corresponding carboxylic acid. For example, from acetic acid acetaldehyde, formula of acetaldehyde is CH3CHO. From benzoic acid, benzaldehyde. Formic acid say formaldehyde. But in common name, location of substituent inside in carbon chain is indicated by alpha, beta, gamma and delta. See in this case, कभी भी आपने 1 2 3 नंबरिंग नहीं करनी है कॉमन नेम में. कॉमन नेम में हम क्या लिखते हैं? अल्फा, बीटा, गामा. फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप है CHO. फंक्शनल ग्रुप का जो नेक्स्ट कार्बन है दैट इज अल्फा कार्बन, उसके नेक्स्ट बीटा, उसके नेक्स्ट गामा. सो यहाँ पे बीटा पोजीशन के साथ क्या अटैच है? Br. तो हम क्या लिखेंगे? बीटा ब्रोमो. ठीक है. अब मेन चेन में कितने कार्बन है? 1 2 3 4. 4 कार्बन वाला एल्डिहाइड कौन सा होता है? ब्यूटाल्डिहाइड. दैट्स व्हाई इट्स कॉमन नेम इज बीटा ब्रोमो ब्यूटाल्डिहाइड. ओके. नाउ IUPAC naming. In IUPAC naming, the aliphatic aldehydes are named as alkane ul. It means E of alkane is replaced by ul. That's why it is named as alkane uls. For example, CH3, CH2, CH2, CHO. How many carbons present in it? 4. 1, 2, 3, 4. Okay. तो 4 कार्बन वाला एल्केन कौन सा होता है? ब्यूटेन. ठीक है ना.
आपने ब्यूटेन के ई को रिप्लेस किसके साथ कर देना, अल के साथ. सो इट्स आईयूपीएसी नेम इज ब्यूटेन अल. ठीक है, इसमें जो आपने नंबरिंग स्टार्ट करनी है दैट इज फ्रॉम दिस कार्बन. इट मींस एल्डिहाइड कार्बन इज ऑलवेज नंबर 1. दैट्स व्हाई देयर इज नो नीड टू साइन द पोजीशन टू दिस इन द नेमिंग. 1 2 3 4. ये वाला जो एल्डिहाइड कार्बन है इट इज ऑलवेज नंबर 1, इसलिए हम नेम में उसकी पोजीशन नहीं लिख रहे हैं. नाउ सफिक्स कार्बेल्डिहाइड इज यूज्ड when carbon chain is linked to more than 2 aldehyde group. अगर आप इस कंपाउंड में देखें तो 2 से ज्यादा CHO ग्रुप प्रेजेंट है, 1 2 एंड 3. ठीक है ना. तो जो कार्बन चेन है वो भी क्या है, अनब्रांच्ड है. तो उस केस में हम इन तीनों को इक्वल ट्रीटमेंट देंगे, इनको पेरेंट चेन में ऐड नहीं करेंगे. जब कार्बन को हम पेरेंट चेन में ऐड नहीं करते हैं तब उसको अल नहीं बोलते, उसको क्या बोलेंगे, कार्बेल्डिहाइड. तो इसका नेम क्या होगा, हाउ मेनी कार्बन्स इन पेरेंट चेन, 1 2 3 एंड 4. तो कितने कार्बन हो गए स्टेट चेन में, ब्यूटेन. ओके. तो ब्यूटेन के किस कार्बन के साथ एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, 1 कार्बन के साथ, देन 2 कार्बन के साथ, देन 4th कार्बन के साथ. तो ये क्या हो गया, ट्राई कार्बेल्डिहाइड. ओके. सो इट्स नेम इज ब्यूटेन 1,2,4 tricarbaldehyde. Next, when aldehyde group is attached to ring, then suffix carbaldehyde is added after the full name of cyclohexane. आप अगर इसमें देखें तो हम इस कार्बन को पेरेंट चेन में एड अप नहीं कर पा रहे हैं, हम काउंट नहीं कर पा रहे हैं. यहाँ पे 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6. ये क्या, साइक्लोहेक्सेन. साइक्लोहेक्सेन लिखने के बाद हम साथ में क्या लिख रहे हैं, कार्बेल्डिहाइड. इट मीन्स व्हेन एल्डिहाइड इज अटैच्ड टू अ रिंग then कार्बेल्डिहाइड is added after the full name of cycloalkane. इसमें कितने कार्बन है हमारे क्लोज्ड फॉर्म में, रिंग में 6. तो हम क्या लिख रहे हैं, साइक्लोहेक्सेन. साथ में हम क्या लिख रहे हैं, कार्बेल्डिहाइड. ओके. नाउ इफ substituents are present with it then how you will name it. तो जिस कार्बन के साथ, जिस कार्बन जो क्लोज्ड कार्बन साइक्लोएल्केन है ना आपका, अगर जिसका उसके साथ जिसमें CHO अटैच है, एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है, दैट इज नंबर 1. द नंबरिंग ऑफ रिंग ऑफ कार्बन एटम्स स्टार्ट फ्रॉम दैट कार्बन विच इज अटैच टू एल्डिहाइड ग्रुप. तो आप इस कार्बन, जिस कार्बन के साथ CHO अटैच है उसको कौन सी नंबरिंग दे रहे हो, 1 1 2 एंड देन 3. तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, 3 मिथाइल, yes, cyclohexane कार्बेल्डिहाइड. Okay. Then the next is the name of simplest aromatic aldehyde carrying aldehyde group on benzene ring is known as benzene carbaldehyde, but its common name is benzaldehyde, that is also accepted by IUPAC name. Now, naming of ketones. In common system, the name of both aliphatic and aromatic ketones are obtained by naming 2 alkyl or aryl group in alphabetical order arranged to keto groups by adding word ketone. See in this case, इस केस में ये वाला कीटोनिक ग्रुप है, CO कार्बोनाइल ग्रुप. इस साइड पे क्या अटैच है, CH3 1 कार्बन, मिथाइल, यहाँ पे 2 कार्बन, इथाइल. तो इसका कॉमन नेम क्या होगा कि हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इस अल्काइल ग्रुप को अरेंज करेंगे और साथ में क्या ऐड कर देंगे, कीटोन. सो इट्स कॉमन नेम इज इथाइल, यस मिथाइल, साथ में क्या आ जाएगा, कीटोन. ठीक है. लेकिन इफ व्हेन 2 अल्काइल और अराइल ग्रुप आर सेम, सी इन दिस केस, इधर भी मिथाइल है और इधर भी मिथाइल है, तो हम क्या वर्ड यूज के साथ में क्या याद लगा देंगे, अल्काइल ग्रुप के साथ डाई. तो इसका नाम क्या आ जाएगा, डाई मिथाइल, साथ में क्या आ जाएगा, कीटोन. ओके.
It is a common name of these compounds. Some ketones are also known with name. For example, dimethyl ketones को हम क्या बोल देते हैं? Acetone. And aromatic ketones in which carbonyl group is attached to benzene ring, that are known as phenones. For example, acetophenone, benzophenone. Okay. Next part is IUPAC name. Now, IUPAC name of ketones are named as alkanones. Means E को आप replace कर रहे हो E of alkane. जिससे alkane जितने कार्बन उसमें उतने alkane में से आप E को replace किसके साथ कर रहे हो? ONE के साथ. For example, CH3, CO, CH2, CH2, CH3. Now, how many carbons are present in this case? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 5 कार्बन है तो हम इसको क्या बोलेंगे? पेंटेन, है ना? 5 कार्बन पेंटेन इज रिप्लेस्ड बाय ऑन, तो ये बन गया पेंटेनॉन. अब नंबरिंग हमने किस तरह से करनी है? नंबरिंग बिगन्स फ्रॉम द एंड नियरर टू कार्बोनाइल ग्रुप. मीन्स हमने इस कीटोनिक ग्रुप को मिनिमम पोजीशन देनी है, इस कीटोनिक कार्बन को. इफ वी स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दिस कार्बन 1, 2, 3, 4, 5, तो इसको पोजीशन मिलती है 2. बट इफ वी स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दिस कार्बन 1, 2, 3, 4, तो इसको कौन सी पोजीशन, इस कार्बन को कौन सी पोजीशन असाइन होगी? 4. तो हमने कौन सी पोजीशन असाइन करनी है इसको? मिनिमम पोजीशन, दैट इज 2. तब इसका नेम क्या होगा? पेंटेन इज रिप्लेस्ड बाय ऑन. पोजीशन लिख के हमने क्या लिख देना? 2 ONE. नाउ इन केस ऑफ कीटोएल्डिहाइड्स, कीटोएल्डिहाइड्स मीन उसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी प्रेजेंट है और कीटोनिक ग्रुप भी प्रेजेंट है. ठीक है ना? द ऑक्सो इज यूज्ड फॉर कीटो ग्रुप एंड इट्स पोजीशन ऑन द पेरेंट चेन इज इंडिकेटेड बाय सुटेबल नंबर. आप इस एल्डिहाइड ग्रुप को तो अल बोल देंगे, ठीक है ना? लेकिन जो ये वाला ग्रुप है CO, इसको आप क्या बोलोगे? ऑक्सो. तो इसको मिनिमम पोजीशन भी असाइन करनी है हमने. स्टार नंबरिंग फ्रॉम दिस कार्बन 1, 2, 3, 4 and 5. Now what is the name of this compound? 3 लिख के आपने क्या लिखना है? ऑक्सो पेंटेन अल. Okay. It is the IUPAC name of compound containing both keto and aldehyde group. Now, write the IUPAC name of these compounds with me. First one is CH3 twice CH, CO, CH, CH3 twice. What is the IUPAC name of this compound? Yes. For this, तो CH3, CH, यहाँ पे भी CH3, इस CH के साथ 2 times CH3 है. उसके बाद आ गया कीटोनिक ग्रुप CO, देन अगेन CH, CH3, इसके साथ भी हमारा CH3. The name of this compound. First of all, select parent chain. 1 carbon, 2, 3, 4, 5. अगर आप इस साइड से नंबरिंग करते हो तो 3 पोजीशन टू दिस ketonic carbon. If we start numbering from this 1, 2, 3, again same. So what is the IUPAC name of this compound? Yes, 2, 4 dimethyl. 2 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, 4 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है. 2, 4 dimethyl pentane 3, 4. Okay. Now next compound CH2 double bond CH, CHO. Aldehyde group है, always number 1, 1 carbon, 2 and 3. Yes, name of this compound 3 carbon prop, 2 position पे double bond, 2 in al. Now next compound CH, इस कार्बन के साथ 2 times CH3 अटैच है, 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, CH3, CH3. ओके, तो साथ में क्या अटैच है? CHO. नाउ नेम दिस कंपाउंड. पेरेंट चेन सिलेक्ट करें तो ये नंबर 1, 2 and 3. ओके, फर्स्ट कार्बन
सेकेंड कार्बन एंड थर्ड कार्बन। कार्बन नंबर 2 के साथ बच्चे यहाँ पे क्या अटैच है, मिथाइल ग्रुप, तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, 2 मिथाइल, यस, प्रोपेन अल। ओके, नाउ नेक्स्ट कंपाउंड है हमारे पास सी, ये वाला कार्बन लिख रही हूं मैं, और यहाँ पे दो इसके साथ मिथाइल अटैच है, CH3, देन डबल बॉन्ड, देन CH, उसके बाद ये वाला CO, कीटोनिक ग्रुप, देन CH3। नाउ नेम दिस कंपाउंड। आपने इस कार्बन को मिनिमम पोजीशन असाइन करनी है, तो आप नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 यहाँ से, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। 5 कार्बन है तो पेंटेन ऑन हो गया, 2 पोजीशन पे कीटोनिक ग्रुप है, लेकिन 4th पोजीशन पे क्या अटैच है, मिथाइल, और 3rd पोजीशन के बाद क्या है, डबल बॉन्ड। अब इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, 4 मिथाइल पेंट 3 इन, इस 2 पोजीशन पे कीटोनिक ग्रुप, 2 ऑन। ओके, नाउ नेम दिस कंपाउंड। इस केस में एल्डिहाइड ग्रुप भी प्रेजेंट है और कीटोनिक ग्रुप भी प्रेजेंट है। अगर कीटो एल्डिहाइड ग्रुप है तो आप इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सो, और इसके लिए क्या यूज करेंगे, अल। इट इज नंबर 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन एंड 5 कार्बन। इसका नेम क्या हो जाएगा, 3rd पोजीशन ऑक्सो के लिए 3 ऑक्सो। ये आगे क्या आ जाएगा हमारा, 5 कार्बन है तो हम क्या लिखेंगे, पेंटेन अल। Okay, so note down all the IUPAC name of this compound. Next, write the IUPAC name of these 4 compounds. फर्स्ट कंपाउंड की नेमिंग क्या है इसमें, इस कार्बन नंबर 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4, 5, 6, 7 कार्बन है इस केस में, है ना। तो 3 पोजीशन के साथ क्या अटैच है, मिथाइल, और 4 के साथ क्या अटैच है, Br, दैट इज ब्रोमो। अल्फाबेटिकली हम पहले ब्रोमो लिखेंगे, एज यू ऑल नो। 4 पोजीशन पे क्या है, ब्रोमो, 4 ब्रोमो, ठीक है ना। और 3rd पोजीशन पे क्या अटैच है, मिथाइल, 3 मिथाइल। आगे कितने कार्बन है हमारे पास, 7 कार्बन है, 7 कार्बन मीन्स हेप्टेन, एल्डिहाइड ग्रुप, अल। नो नीड राइट 1 अल because it is always number 1 aldehyde group. So next compound है आपके पास, this one, नेमिंग कीजिए इसकी, 1 कार्बन, एल्डिहाइड को कार्बन नंबर 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4 एंड देन 5। वेरी सिंपल कंपाउंड, नेमिंग बहुत आसान है इसकी। 5 कार्बन है तो हम क्या लिखेंगे, पेंट, ठीक है। 2 पोजीशन के बाद डबल बॉन्ड है तो हम क्या लिख देंगे, पेंट 2 इन अल। Okay, now next compound, 1 carbon, 2 carbon, 3, 4, 5, ये होगी हमारी पेरेंट चेन। इसकी IUPAC नेमिंग क्या बन जाएगी हमारे पास, 2 पोजीशन पे मिथाइल है और 4 पोजीशन पे भी मिथाइल है तो हम क्या लिखेंगे, 2, 4 डाइमिथाइल पेंटेन 3 on. Now in this case एल्डिहाइड ग्रुप कितने प्रेजेंट है, 3 एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है ना। मोर देन 2 एल्डिहाइड ग्रुप्स आर प्रेजेंट, सो हम पेरेंट चेन क्या सिलेक्ट करेंगे, 1, 2, 3। तो इसके नेमिंग क्या हो जाएगी, प्रोपेन से, प्रोपेन 1, 2, 3। अब अल नहीं लिखना, हमें क्या लिखना है, आप सबको पता है, ट्राई कार्बेल्डिहाइड, ठीक है। अब कार्बन को आप पेरेंट चेन में ऐड नहीं कर रहे हो तो इसको अलग से क्या लिखोगे, कार्बेल्डिहाइड। नेक्स्ट, मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। हम ऐसे मेथड ऑफ प्रेपरेशन डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें आप एल्डिहाइड भी प्रिपेयर कर सकते हो और कीटोन्स भी प्रिपेयर करते हो। फर्स्ट मेथड इज बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स।
1 degree alcohol on oxidation with oxidizing agent gives aldehydes. For example, methyl alcohol CH3 CH3OH, that is methanol. On oxidation give formaldehyde HCHO. Its IUPAC name is methanol. And ethanol CH3CH2OH, इथाइल अल्कोहल इसकी कॉमन नेमिंग है. ऑक्सीडेशन करेंगे तो बच्चे क्या बनेगा? CH3CHO, दैट इज एसिटाल्डिहाइड. इसका IUPAC नेम 2 कार्बन है तो हम क्या लिखेंगे? इथेनॉल. सिमिलरली बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या है? बेंजीन रिंग के साथ CH2OH. On oxidation it give benzaldehyde C6H5CHO. It means 1 degree alcohol on oxidation give aldehydes, but 2 degree alcohols on oxidation gives ketones. For example, isopropyl alcohol. आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्या है हमारा? 2 डिग्री अल्कोहल है. IUPAC नेमिंग इसकी क्या हो जाएगी? 1 2 3 कार्बन, प्रोपेन 2 और 2 डिग्री अल्कोहल. जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा? कीटोन्स. कौन सा कीटोन यहाँ पे बनेगा? एसीटोन. एसीटोन का बच्चे कॉमन नेम दूसरा कौन सा होता है? डाइमिथाइल कीटोन. और IUPAC नेम इसका क्या होगा? 3 कार्बन है तो क्या बोलेंगे? प्रोपेनॉल. ओके. नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे जो लिखी है दैट इज सेक ब्यूटाइल अल्कोहल. सेक ब्यूटाइल अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है ना. इसमें अगर IUPAC नेमिंग करें तो 1 2 3 4 ब्यूटेन 2 और ओके ब्यूटेन 2 और. ये भी हमारा 2 डिग्री अल्कोहल है क्योंकि जिस कार्बन के साथ OH अटैच है वो आगे 2 कार्बन से अटैच है. ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा? इथाइल मिथाइल कीटोन. जिस कार्बन के साथ OH अटैच है बेटे वहीं पे आपका कीटोनिक ग्रुप लगना है. तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? इथाइल मिथाइल कीटोन. एक साइड पे इथाइल ग्रुप है, मिथाइल है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? इथाइल मिथाइल कीटोन. लेकिन अगर हम IUPAC नेमिंग लिखनी है इसकी तो हम क्या लिखते हैं? 1 कार्बन 2 3 4, दैट इज ब्यूटेन 2 ON. Okay, it means 1 degree alcohol on oxidation give aldehyde and 2 degree alcohols on oxidation give ketones. Ketones are not further easily oxidized to carboxylic acid, but aldehydes formed easily oxidized to carboxylic acids. So it can be distilled off as soon as it is formed, or we can use a reagent टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन टू कार्बोक्सिलिक एसिड. कौन कौन से रिएजेंट यूज कर सकते हैं हम ताकि फर्दर उसके ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड में ना हो? दैट इज कॉलिन्स रिएजेंट, दैट इज कॉम्प्लेक्स ऑफ क्रोमियम ट्राइऑक्साइड एंड पायरिडीन. देन कोरिस रिएजेंट और पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, दैट इज आल्सो नोन एज PCC. इट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, पायरिडीन and HCl. Next is pyridinium dichromate, that is PDC. Okay. Now, next method of preparation of aldehyde and ketone is by dehydrogenation of alcohol. Dehydrogenation means removal of hydrogen. The dehydrogenation of alcohol is carried out by passing the vapors of alcohols over reduced copper at 573 Kelvin. 1 डिग्री अल्कोहल की जब हम डिहाइड्रोजनेशन करेंगे कॉपर और 573 केल्विन पे, वो क्या बनेगा? एल्डिहाइड्स. लेकिन 2 डिग्री अल्कोहल्स क्या बनाता है बेटे? कीटोन्स. फॉर एग्जांपल CH3CH2OH. 1 डिग्री अल्कोहल on treatment with copper at 573 Kelvin, it form CH3CHO, that is ethanol. एल्डिहाइड बन गए यहाँ पे, प्लस H2, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, डिहाइड्रोजनेशन. नेक्स्ट CH3CHOH, प्रोपेन 2-ol. its name is propen 2-ol. 2 डिग्री अल्कोहल with copper at 573 Kelvin. ये क्या बना देगा? CH3
यहाँ पे क्या आ जाएगा CO और CH3, ये क्या बन गया हमारा प्रोपेनॉन, दैट इज डाइमिथाइल कीटोन और एसीटोन with removal of hydrogen. It means by dehydrogenation of alcohols we can prepare aldehyde and ketones. 1 डिग्री अल्कोहल में से डिहाइड्रोजनेशन करेंगे तो क्या बनेगा, क्या होगा, एल्डिहाइड्स बनेगा. 2 डिग्री ऑन डिहाइड्रोजनेशन फॉर्म कीटोन्स. Next method of preparation is from hydrocarbons. Alkenes when react with ozone form ozonide, which on reductive cleavage with zinc dust form aldehydes and ketones. For example, ethene, CH2 double bond CH2 on reaction with ozone O3, presence of CCl4 at 196 Kelvin, it form CH2 CH2, यहाँ पे ऑक्सीजन. Okay, now with reductive cleavage in presence of zinc dust and water, it form, यहाँ पे बेटा अगर आप यहाँ से कर रहे थे, यहाँ पे क्या है HCHO. HCHO क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड, दैट इज मिथेनॉल. एक मिथेनॉल और दूसरी साइड से भी क्या बन रहा है, मिथेनॉल. इट मीन्स 2 मिथेनॉल्स आर फॉर्म्ड एंड दिस ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ ZN. Okay, it means alkene on reaction with ozone can form aldehydes and ketones. यहाँ पे तो बेटा सिर्फ हमारे पास क्या बन रहा है अभी, aldehydes, ketones नहीं बनाया हमने. ओके, तो और एग्जांपल लिखते हैं यहाँ पे. देखिए इस एग्जांपल में क्या, ब्यूटाटोइन. ब्यूटाटोइन को जब आप O3 के साथ रिएक्ट कर रहे हो और फर्दर आप उसको जिंक के साथ और वाटर के साथ रिएक्शन करवा रहे हो, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, 2CH3CHO, मीन्स 2 मॉलिक्यूल किसके बन रहे हैं, एस्टैल्डिहाइड के, दैट इज ऑफ इथेनॉल के. ओके, ऐसे एक और एग्जांपल देखिए इसमें. ये कौन सी एग्जांपल है, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटाटोइन. इस केस में क्या बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे एसीटोन, प्रोपेनॉन. यहाँ से अगर हम क्लीवेज करवाते हैं इसकी, तो इसमें इस केस में अगर आप अपने ऑब्जर्व किया यहाँ पे, तो अगर H प्रेजेंट है इस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ तो क्या बन रहा है, एल्डिहाइड. यहाँ पे H नहीं प्रेजेंट है तो क्या बन रहा है, कीटोन्स. ऐसी एग्जांपल लिखते हैं, आप इसमें बताना क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा कि कीटोन बनेगा. फॉर एग्जांपल CH3 यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH3. फर्स्ट ऑफ ऑल नेम दिस कंपाउंड. 1 कार्बन 2 3 4 ब्यूटीन है और साथ में क्या लगा हुआ है, मिथाइल, है ना. 2 मिथाइल ब्यूटाटोइन ऑन विद O3 क्या बना देगा ये, एट 196 केल्विन CCl4 के प्रेजेंस में इट फॉर्म CH3 यहाँ पे और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे आपका आ जाएगा CH3. अब देखो इसमें एक डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, एक के साथ नहीं है ना. तो इट मीन्स एक मॉलिक्यूल किसका बनेगा, एल्डिहाइड का, और एक किसका बनेगा, कीटोन का. यहाँ पे कीटोन कौन सा बनेगा, 3 कार्बन वाला, ये बनाएगा जिंक और वाटर के साथ -ZNO. इट फॉर्म CH3 यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, ये बन गया कीटोन, एसीटोन बन गया यहाँ पे. प्लस इसमें कितने कार्बन है, 1 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड CH3CHO क्या बनेगा, इथेनॉल, दैट इज एसिटाल्डिहाइड. यहाँ पे बना एक एसिटाल्डिहाइड और ये क्या बना, एसीटोन. ओके, नेक्स्ट इज हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन. Hydration means addition of water molecule. Addition of water to ethyne in presence of sulfuric acid H2SO4 and HgSO4 gives acetaldehyde, and all other alkynes gives ketones in this reaction. फर्स्ट हमने जो रिएक्शन यहाँ पे है हमारे पास, वो क्या है, इथाइन के साथ है. इथाइन में हम क्या ऐड कर रहे हैं, वाटर मोलिक्यूल. इस एसिटिलीन लिखा है यहाँ पे, इसका IUPAC नेम क्या है, इथाइन.
हमने H2 ऐड किया, H2 में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव सिमेट्रिकल अल्काइन है, तो एक कार्बन पे क्या जाएगा OH, एक कार्बन के साथ क्या होगा H पॉजिटिव, एंड इट फॉर्म विनाइल अल्कोहल। ये हमारा विनाइल ग्रुप है CH2 डबल बॉन्ड CH, इट फॉर्म विनाइल अल्कोहल विद टोटोमेरिज्म, इट फॉर्म एसिटाल्डिहाइड। ओके, लेकिन अगर हम कोई और अल्काइन यूज करते हैं, ऑल अदर अल्काइंस गिव्स कीटोन्स इन दिस रिएक्शन। सी इस केस में क्या है, हमने क्या यूज किया, प्रोपाइन CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH विद H2O, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। अकॉर्डिंग टू Markovnikov rule, negative part goes to that carbon which contain less number of हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जो OH है वो किस कार्बन के पास जाएगा, इस कार्बन के पास, और क्या बना देगा, prop 1 in 2 और। ओके, अगर ये वाला हमारा कंपाउंड बना है, फर्दर टोटोमेरिज्म के बाद वो क्या बनाएगा, कीटोन्स। यहाँ पे कौन सा कीटोन बन रहा है, एसीटोन। बट फॉर्मेल्डिहाइड दैट इज मिथेनॉल, मिथेनॉल में कितने कार्बन होते हैं, 1, तो वो तो इस मेथड से नहीं प्रिपेयर होगा ना, क्योंकि एल्काइंस का फर्स्ट मेंबर ही इथाइन है, उसमें मिनिमम 2 कार्बन है, 1 कार्बन वाला कोई एल्काइन नहीं है हमारे पास। इट मीन्स मिथेनॉल दैट इज HCHO is not prepared by this method. Okay, next method of preparation of aldehydes only। ऐसे मेथड जिसमें सिर्फ हम किसको प्रिपेयर कर सकते हैं, एल्डिहाइड्स को। पहले हमने क्या डिस्कस किया था, मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, दोनों की हमने प्रेपरेशन डिस्कस की थी। अब हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स ओनली। तो उसके लिए फर्स्ट मेथड हम यूज करें, दैट इज फ्रॉम acyl chloride, that is acid chloride. Acyl chloride is hydrogenated over catalyst palladium on barium sulfate, and this reaction is known as Rosenmund reaction. For example, RCOCl. ओके, प्लस हम इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, H2 in presence of palladium spotted over barium sulfate, और ये क्या बना देगा, RCHO, एल्डिहाइड बन गया इसमें। एक और एग्जांपल इसके लिखते हैं, बेंजोइल क्लोराइड that is C6H5COCl with H2 in presence of palladium spotted over barium sulfate, ये क्या बना देगा, बेंजल्डिहाइड। लेकिन इस केस में हम इसकी पॉइजनिंग करेंगे सल्फर के साथ और फिनोलाइन के साथ, इस केस में भी, because it on further reduction give rise to alcohol, to prevent that conversion to alcohol we add sulfur, ताकि उसको डीएक्टिवेट किया जाए। ओके, next method of preparation of aldehyde from nitriles and esters. Nitriles are reduced to corresponding imines with stannous chlorides in presence of hydrochloric acid, which on hydrolysis give corresponding aldehyde, and this reaction is called Stephan reaction. Very important reaction. अब इस केस में क्या है, नाइट्राइल दैट इज RCN when react with SnCl2 or HCl, it give nascent hydrogen, and that form RCH double bond NH, क्या बन जाएगा यहाँ पे, imines I से, which on further hydrolysis give rise to aldehydes, and this reaction is called Stephan reaction. Nitriles are reduced by diisobutyl aluminum hydride. See, in this case में भी क्या बनेगा, पहले imine then followed by hydrolysis to give aldehydes. And esters also are reduced to aldehydes with this diisobutyl aluminum hydride. Now, what is the name of this esters and this aldehydes formed by this method? It is CH3CH2 9COH। यहाँ पे कितने कार्बन है, 2, यहाँ पे इथाइल, यहाँ पे हो गया 1 9 10 और ये 11। अगर हमें इसकी नेमिंग बताइए बेटे, क्या है, CH3COOCH3, व्हाट इज द नेमिंग ऑफ दिस कंपाउंड। तो आप क्या लिखते हो, यहाँ पे पहले मिथाइल लिखते हो, मिथाइल 2 कार्बन हैं, तो आप लिख देते हो इथेनोएट। तो इसकी नेमिंग भी आप करिए, इसमें कितने कार्बन है, 2, तो हम पहले क्या लिखेंगे, इथाइल,
ओके, इसमें कितने कार्बन है? 11। अगर 11 कार्बन है इसमें, तो आप बताइए कि आप इसमें कैसे इसकी नेमिंग करेंगे? इसका नाम क्या होगा? यस, अनडेक्नोएट। ओके ना? तो इस केस में कितने कार्बन वाला आपका एल्डिहाइड्स बने हैं? 1 और 9 10 और एक 11। इसका नाम हो गया अनडेकेन सेट अनडेकेन अल। ओके, now next method of preparation from hydrocarbons. Aromatic aldehydes are prepared from aromatic hydrocarbons by oxidation of methyl benzene. जब हम मिथाइल बेंजीन की ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड के बाद वो फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाता है? बेंजोइक एसिड में। तो हम इसके लिए क्या यूज कर सकते हैं? वी कैन प्रिवेंट फर्दर ऑक्सीडेशन बाय यूज ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड. क्रोमाइल क्लोराइड ऑक्सीडाइज मिथाइल ग्रुप टू chromium complex, which on further hydrolysis give benzaldehyde. Okay, see in this case methyl benzene में हमने क्या ऐड किया है? CrO2 Cl2. ठीक है, और उसके बाद उसने क्या, इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड क्या बन गया यहाँ पे? क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, which on hydrolysis give benzaldehyde, and this reaction is known as Itard reaction. Next, by use of chromic oxide, we can prepare aldehyde, aromatic aldehyde from methyl benzene. इस केस में हम मिथाइल बेंजीन में क्या ऐड कर रहे हैं? क्रोमिक ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड. मिथाइल बेंजीन is converted to benzylidene diacetate on treatment with chromic oxide and acetic anhydride. इट क्या बनेगा यहाँ पे? या ये कंपाउंड क्या है? इट इज बेंजाइलिडीन डाइएसिटेट, which on hydrolysis give benzaldehyde. Again, method of preparation of benzaldehyde, aromatic aldehydes. Next method of preparation by side chain chlorination. Side chain chlorination of methyl benzene. बेंजीन रिंग के साथ क्या लगा हुआ है यहाँ पे? CH3 मिथाइल बेंजीन on chlorination in presence of sunlight it form benzyl chloride. Side chain की क्या करवा दी आपने? Chlorination. Okay, and which on hydrolysis give benzaldehyde. Next method of preparation of benzaldehyde by Gattermann-Koch reaction. When benzene is treated with carbon monoxide and hydrogen chloride, किसकी प्रेजेंस में? एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड या फिर आप कॉपर क्लोराइड यूज कर रहे हो, इट गिव बेंजाल्डिहाइड. मीन बेंजीन से क्या बन रहा है यहाँ पे? बेंजाल्डिहाइड, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज Gattermann-Koch reaction. Okay, these are the methods of the preparation of aldehydes only.